Now we are starting microbes in production of biogas. Topic 8.4. Biogas is a mixture of gases containing predominantly methane produced by the microbial activity and which may be used as a fuel. ठीक है, जो अपना बायोगैस है वो क्या होता है, उसमें प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, मिथेन होता है. और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है, विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल, जिसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं. We have learned that microbes produce different types of gaseous end products during growth and metabolism. The type of gas produced depend upon the microbes and the organic substrates they utilize. ठीक है, जो टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज. ठीक है, in the example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2. ठीक है, जो मेन गैस प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, CO2 होती है. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulose material produce large amount of methane along with CO2 and hydrogen. Okay. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulose material produce large amount of methane along with CO2 and hydrogen. These bacteria are collectively called as methanogen. इन बैक्टीरिया को हम collectively क्या कहते हैं, methanogen कहते हैं. ठीक है. However, certain bacteria which grow anaerobically on the cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and hydrogen. These bacteria are collectively called as methanogens. One such common bacterium is methanobacterium. ठीक है, these bacteria are commonly found in the anaerobic sludge डाइजेस्टर ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट. ठीक है, अभी अपन ने पीछे पढ़ा था कि जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है उसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया आता है और जो पहले वाला बैक्टीरिया और माइक्रोब है उन सबको खा जाता है. ठीक है, और वो एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा है अपन को अब आके पता लग गया है, यहाँ पे मेथानोबैक्टीरियम है. ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेथानोजन एंड वन सच कॉमन बैक्टीरिया इज मेथानोबैक्टीरियम. ठीक है, these bacteria are also present in the rumen, a part of stomach. ठीक है, ये जो बैक्टीरिया हैं ये प्रेजेंट होते हैं, रूमन में भी प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक. ठीक है, ऑफ कैटल. A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. ठीक है, इन rumen these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. ठीक है, ये जो मेथानोबैक्टीरियम है जो रूमेन के अंदर आपका सेल्यूलोसिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, डू यू थिंक we human beings are able to digest the cellulose present in our foods? Thus, the excreta, dung of cattle, commonly called as gobar, is rich in these bacteria. ठीक है, dung, which is commonly called as gobar, is rich in these bacteria. Okay. Dung can be used for the generation of biogas, commonly called as gobar gas. ठीक है, dung can be used for generation of biogas, commonly called as the gobar gas. Okay. Thus, the excreta, dung of cattle, commonly called as gobar, is rich in these bacteria. Dung can be used for generation of biogas, commonly called as gobar gas. Okay. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर पढ़ूंगा. The excreta of dung of cattle, commonly called as gobar, is rich in these bacteria. ठीक है, dung can be used for the generation of biogas, commonly called as gobar gas. Okay. The biogas plant consists of a concrete tank. ठीक है, जो अपना बायोगैस प्लांट होता है ये कंसिस्ट करता है कॉन्क्रीट टैंक विच इज 10 to 15 feet डीप. ठीक है, the biogas plant contains a concrete tank which is 10 to 15 feet deep.
ठीक है, अगर वहाँ पे मीटर लिख दिया, सेंटीमीटर लिख दिया तो वो सब गलत है, ओनली आपको फीट देखना है वहाँ पे, 10 to 15 feet deep, in which bio waste are collected and slurry of dung is fed. ठीक है, जो बायोगैस प्लांट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक ऑफ इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड. ठीक है, अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी. ठीक है, जो स्लरी अपना है ना उस कॉन्क्रीट टैंक के अंदर, उस कॉन्क्रीट टैंक के ऊपर अपन एक फ्लोटिंग कवर रख देंगे. ठीक है, विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक. ठीक है, जो कि राइज करता रहेगा जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस हो रही है इन द टैंक. ठीक है, ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. किस वजह से? माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से, ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses. ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये? Which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to microbial activity. जो बायोगैस प्लांट है ना उसके पास क्या होता है? एक आउटलेट होता है which is connected to a pipe. The biogas plant is connected to a outlet, है ना, which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses. ये जो डायग्राम है ना इसमें आपको सब कुछ दिख रहा है. ये देखो, ये डंग वाटर आया यहाँ पे, फिर उसके बाद ये नीचे कंक्रीट टैंक है पूरा जिसको हम डाइजेस्टर बोल रहे हैं. ये इसके अंदर ये ऊपर यहाँ पे फ्लोटिंग कवर लगा हुआ है, जो ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर ये स्लज के ट्रीटमेंट से. मतलब ये जो यहाँ पे जो भी मटेरियल है इसके ट्रीटमेंट से जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो इस कवर को ऊपर नीचे कर रही हैं. देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH4, CO2, मीथेन, और ये क्या है? गैस होल्डर है. यहाँ से गैस है, यहाँ पे ये स्लज है जो स्लज इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ से फिर ये हाउस होल्ड में यूज़ आती हैं ये गैस. ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, ऑन राइजिंग द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेज. ठीक है, द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट. ठीक है, ये अभी आपको मैंने दिखाया, ये जो स्पेंट स्लरी है ये इस वाले आउटलेट से है ना. द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. अब ये जो अपना स्लज है इसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं. कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज. जो कैटल डंग है ना ये अवेलेबल है इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस. सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज. एकदम सही बात है कि जो अपने को गोबर है, गाय भैंस हैं, वो ज़्यादा कहाँ दिखती हैं? गाँवों में दिखती हैं, विच इज़ रूरल एरिया. तो वहीं पे बायोगैस ट्रीटमेंट या फिर सीवेज बायोगैस प्लांट जो होंगे वो मैक्सिममली अपन को रूरल एरियाज में ही दिखते हैं. द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग. जो बायोगैस दस प्रोड्यूस होती है वो कुकिंग के लिए काम आती है, लाइटनिंग के लिए काम आती है. ठीक है, द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 8.8. अब ये मैं आपको दिखा चुका हूँ. ये द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया. जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की ये कई बार का PYQ रह चुका है कि जो टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन है वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC. ओके, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन The technology of biogas production was developed in India by two बड़ी ऐसी कंपनीज, जैसे कि कौन कौन सी? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ओके, KVIC. ठीक है,
If your school is situated in a village or near a village, it would be very interesting to inquire if there are any biogas plant nearby. Visit the biogas plant and learn more about it from the people who have actually managing it. देखो मेरे को तो कभी मेरे स्कूल वाले ऐसे लेके नहीं गए, आपको लेके गए हो तो देखा होगा, ठीक है। तो अपना एक ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बहुत अच्छा टॉपिक था, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बायो कंट्रोल रेफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट, ठीक है। जो बायो कंट्रोल है उसका मीनिंग ही यही है कि बायोलॉजिकल मेथड to control plant diseases and pest. In modern society, these problems have been tackled increasingly by use of chemicals, by use of insecticides and pesticides. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? In modern societies, these problems have been tackled increasingly by use of chemicals, by use of insecticides and pesticides. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? मॉडर्न सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है have been tackled increasingly by the use of chemicals, by the use of insecticides, pesticides. ये जो chemicals हैं ये toxic and extremely harmful हैं to human beings and animals alike and have been polluting our environment, soil, ground, water, fruits, vegetables, crop plants. Our soil is also polluted through our use of weedicides to remove weeds, ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के चलते हमने क्या डिज़ाइन करा? एक बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस डिज़ाइन करा। उसको अब अपन पढ़ते हैं, उसमें क्या है। इन एग्रीकल्चर देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेशन ऑफ रादर देन इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, ठीक है। ये किस पे रिलाई करता है? नेचुरल predation rather than introduction of chemicals, ठीक है। A key belief of the organic farmer is that biodiversity further helps. The more variety a landscape has, the more sustainable it is, ठीक है। जितनी ज़्यादा variety एक landscape में होगी उतना ज़्यादा sustainable वो landscape होगा, ठीक है। A key belief of organic farmer is that biodiversity further helps, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या? की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, ठीक है। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क्स टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर द इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड एज पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड, ठीक है। जिसको हम पेस्ट कह रहे हैं वो उसको हम पूरा तरीके से इरेडिकेट नहीं करते हैं, but instead are kept at manageable levels by complex system of checks and balances, ठीक है। उसको हम manageable levels के ऊपर रखते हैं by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem, contrary to the conventional farming practices which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately. क्या बोल रहे हैं ये? Contrary to the conventional farming practices which often used chemical method to kill both harmful and useful forms of life indiscriminately, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriads of organisms that constitute the field, fauna and flora. बहुत ही बढ़िया लाइंस हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि ये है कि हॉलिस्टिक अप्रोच है जो कि डेवलप करती है, जो कि सीख करती है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मिरियाड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कॉन्स्टिट्यूट द फील्ड, फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू दैट द इरेडिकेशन of the creatures are often described as pest is not only possible but also undesirable, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं ये होल्ड करते हैं एक व्यू कि जो इरेडिकेशन है क्रिएचर्स का
that are often described as pest is not only possible but also undesirable. For without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. ठीक है, they would not be able to survive. Thus the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. ठीक है, thus जो यूज़ है बायो कंट्रोल मेजर्स का ये ग्रेटली रिड्यूस करता है हमारी डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स. An important part of biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as the pest, and also their life cycle, patterns of feeding and the habits that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. This will help to develop appropriate means of biocontrol. So देखते हैं वापस से कहाँ से. फॉर विदाउट, ठीक है, पैरासिटिक इंसेक्ट्स विच डिपेंड अपॉन देम एज फूड वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. तो इसलिए इसमें क्या लिखा है कि इसीलिए यूज़ जो हम कर रहे हैं बायो कंट्रोल मेजर्स का वो ग्रेटली रिड्यूस कर देगा हमारी डिपेंडेंस टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बायोलॉजिकल फार्मिंग का एक है टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहेबिट द फील्ड. ठीक है, आपको ये आप वाकिफ होने चाहिए जो आपके पास जो आपकी जो फील्ड है उसके अंदर आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है उससे. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच का. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इज टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म दैट इनहेबिट द फील्ड, प्रेडेटर एज वेल एज पेस्ट, चाहे वो प्रेडेटर हो चाहे वो पेस्ट हो. ठीक है, और ऑल्सो उनकी लाइफ साइकिल, पैटर्न्स ऑफ फीडिंग एंड हैबिटेट दैट दे प्रेफर. उनकी लाइफ साइकिल, उनका पैटर्न ऑफ फीडिंग और उनका हैबिटेट जो वो प्रेफर कर रहे हैं, दिस विल डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल. ये डेवलप कर देगा अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल. ठीक है, फिर अपन आगे पढ़ते हैं. The very familiar beetle with red and black markings, the ladybird and dragonfly are useful to get rid of aphids and mosquitoes respectively. ये क्या है कि जो very familiar beetle होगी ना, beetle देखिए आप लोगों ने, रेड और ब्लैक मार्किंग्स होती हैं उसके ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, लेडी बर्ड कहते हैं, है ना. And dragonfly are useful to get rid of aphid and mosquito respectively. देखिए जो लेडी बर्ड है ना ये यूजफुल है टू गेट रिड ऑफ एफिड्स, है ना, यूजफुल है टू गेट रिड ऑफ एफिड्स, एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज. ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज एंड लेडी बर्ड्स आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स. An example of microbial biocontrol agents that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis. ठीक है, often written as BT, Bacillus thuringiensis. These are available in sachets as dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees. तो इसको अपन वापस देखते हैं कि एक एग्जाम्पल माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट का ये भी है दैट दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बटरफ्लाई. क्या ये इनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, to control the butterfly caterpillars as the bacteria. Bacillus thuringiensis, often written as BT, these are available in sachets as dried spores. ये जो BT है ये कंट्रोल करता है बटरफ्लाई के कैटरपिलर को. ठीक है,
और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये अवेलेबल है सैशेस के अंदर ड्राइड स्पोर्स के फॉर्म में, जिसको हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ एंड स्प्रे करते हैं फिर वल्नरेबल प्लांट्स में, जैसे कि ब्रासिकास और फ्रूट ट्रीज। ठीक है, फिर इनको स्प्रे करते हैं वल्नरेबल प्लांट्स जैसे कि ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज, वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा। ठीक है, फिर जहाँ पर ये जो बैसिलस थोरिंजेंसिस होते हैं ये ईटन, ये इसको कौन ईट करता है, इंसेक्ट लार्वा ईट करता है। इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड। ठीक है, गट के अंदर उसकी टॉक्सिन रिलीज हो जाता है एंड द लार्वा गेट किल्ड। इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड। इन बैक्टीरियल डिजीजेज, in bacterial disease will kill the caterpillars but leave other insect unharmed। ये जो बैक्टीरियल डिजीज है ये किल कर देगी कैटरपिलर्स को, बट ये बाकी अदर सारे जितने भी इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स हैं उनको अनहार्म्ड रखेगी। The bacterial disease will kill the caterpillar but leave the other insects unharmed because of the development of methods of genetic engineering in the last decade or so. The scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxin genes into plant. ठीक है, such plants are resistant to attack by insect pest। ये जो plants हैं ये resistant हैं टू द इंसेक्ट पेस्ट। बीटी कॉटन जो है वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि विच इज़ बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, आप इसको और लर्न करेंगे आप बायोटेक वाले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेज एज द फंगस ट्राइकोडर्मा। अभी इससे पहले कहाँ पर पढ़ा था फंगस ट्राइकोडर्मा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बताएंगे, साइक्लोस्पोरिने देख लीजिए वापस से, साइक्लोस्पोरिने। ठीक है, ये रहा, ये देखो, एकदम सही है। साइक्लोस्पोरिने दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो अब यहाँ पर भी यही है, बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज क्या होती हैं? फ्री लिविंग फंजाई होती हैं दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। ठीक है, जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होती हैं ये फ्री लिविंग फंजाई होती हैं जो कि बहुत कॉमन होती हैं रूट इकोसिस्टम में। ठीक है, दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर सेवरल प्लांट पैथोजेंस। ठीक है, ये इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स होती हैं फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन। ठीक है, Trichoderma species are free living fungi that are very common in the root ecosystem. They are effective biocontrol agents of several plant pathogens. They are effective biocontrol agents of several plant pathogen. ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स। जो बैक्यूलोवायरस होते हैं ये क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को और अदर आर्थ्रोपोड्स को। ठीक है, बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। द मेजॉरिटी, ये बहुत ही बढ़िया लाइन्स हैं बच्चों, इनको पूरा ध्यान से सुनो क्योंकि इनसे सवाल ज़रूर बनेगा आपके एग्जामिनेशन में कि जो बैक्यूलोवायरस हैं ये पैथोजन है जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को और अदर आर्थ्रोपोड्स को। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस को हम कैसे यूज़ करते हैं? एज बायो कंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, बैक्यूलोवायरस आर यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, जो वायरसेस हैं ये जो पॉलीहेड्रोवायरस है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो है ये क्या है? वेरी एक्सीलेंट कैंडिडेट्स हैं फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पीसीज स्पेसिफिक
स्पीशीज स्पेसिफिक हैं, नारो स्पेक्ट्रम है, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट, ठीक है। दे हैव बीन शोन टू शो नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट, mammals, birds, fish, or even on non-target insects. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management IPM program, or when an ecological sensitive area is being treated. ठीक है, इसको वापस देखेंगे अपन। दीज बैक्टीरिया आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नारो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। ये इनने शो करा है, दे हैव इवन शोन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। दिस इज स्पेशली desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program, or when an ecological sensitive area is being treated, ठीक है, जब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को हम ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अपन ने इस वीडियो में बच्चों 2 टॉपिक्स करे, अपना आखिरी टॉपिक बचा एक माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर और समरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय बाय।